Hello student, now the next topic, balancing equation by oxidation number method. In the last topic, balancing equation by ions electron method, but there is different balancing equation by oxidation number method, and this is the last topic of your chapter. Okay, now there is a first equation, FeCl3 plus H2S gives FeCl2 plus S plus HCl. This is called hydrochloric acid. Okay, now first you find the oxidation number. Now you know very well Cl is -1, so now there's Fe is +3. Fe is +3 and chlorine is -1. Now you know very well hydrogen is +1 and sulfur is -2. Now Fe is +2, chlorine is -1. A single element, it means the oxidation number is 0, elementary, and H is +1 and chlorine is -1. Clear? So now first you consider there is Fe +3 and Fe +2. तो एक तो इसके साथ रिलेशन होगा. Now the second is hydrogen common, Cl common. Now sulfur is -2 and sulfur is 0. Okay, so now again you write this equation, FeCl3 plus H2S gives FeCl2 plus S plus HCl. Clear? So now there is Fe is +3 and this Fe is +2. Now this sulfur is -2 and this sulfur is 0. Now this Fe to this Fe, oxidation state or oxidation number decreases. It means reduction. Yes. Now this sulfur to this sulfur, oxidation state increases. It means oxidation. Clear? Now अब देखो यहाँ पर Fe +3 to Fe +2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन. यस. नाउ दिस -2 to 0, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन. यानी 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीमेंट हो रहा है. यस. यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके बराबर करने के लिए, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाकर ये इसके इक्वल होगा. क्लियर? तो नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. यानी यहाँ पर हो रहा है डिक्रीमेंट और यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट. यस. इंक्रीमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट. Yes, yeah, there is a increment and there is a decrement. Clear? Now अब देखो बैलेंस कैसे करोगे. There is 1 electron, there is 2 electron. तो इस पार्ट को हम बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे? जैसे ये देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 1. तो इस पार्ट को, ओनली फॉर दिस पार्ट को, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? मल्टीप्लाई बाय 2. तो इसको किससे कर दे? 2 FeCl3. क्लियर? H2S को तो नहीं करना है, सिंपल. Clear? Now this Fe is also multiplied by 2. So there is 2 FeCl2 plus S plus HCl. Clear? अब देखो यहाँ पर तो ये ऑक्सीडेशन और मेथड से बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमें देखना भी है, चेक भी करना है कि एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड और नॉट. तो देखो यहाँ पे 2 Fe. क्लियर? Now there is 2 3 is 6 क्लोरीन, there is 2 2 is 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2. क्लियर? Clear 100%. Now there is 2 hydrogen. Yes, 2 hydrogen. There is 1 sulfur. There is 1 sulfur. Clear? Now this is a first equation by oxidation number method. Clear? Easy, बहुत easy है. Now the next. अब देखो क्या करना है next वाले में. The next question is MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O. देखो, now this oxygen is -2, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +4. This oxygen is -2. H +1, chlorine -1. Clear? And there's again
2Cl, it means Mn plus 2, chlorine minus 1. Cl elementary, it means 0 and there is plus 1 minus 2. अब देखो यहाँ पे किसका किसका रिलेशन होगा, दिस Mn to this Mn and this Cl to this Cl. तो अगेन इसको फिर से लिखो, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2. Yes, अब देखो यहाँ पे है plus 4 and there is plus 2 and this chlorine is minus 1 and there is this chlorine 0. तो this Mn to this Mn, what relation? Oxidation state decreases, it means reduction. यानी इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन, इट मीन्स इंक्रीमेंट. यस, इंक्रीमेंट 2 इलेक्ट्रॉन. अब देखो दिस माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है ना, तो गेन किया इंक्रीमेंट. अब इसने क्या किया होगा, दिस माइनस टू दिस 0, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज. इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. यस, तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीमेंट हुआ इसका. यस, 100% क्लियर बेटा. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड अगेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस पार्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से. क्लियर. तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वाले में MnO2 ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2HCl. क्लियर. इसको भी नहीं करना है, दिस इज अ पार्ट, फर्स्ट पार्ट, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2. तो देखो ये 4 पार्ट तो हमारे बैलेंस है, ये वाले 4 पार्ट. लेकिन ये भी देखना है कि हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं. तो देयर इज 1 Mn 1 Mn. देखो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, लास्ट में हाइड्रोजन को करो. तो देखो पहले Mn को देखो, क्लियर ना, क्लोरीन को देखो, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन इज व्हाट, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, 2. तो ये 2H2O हो गया. यहाँ पे क्या है, Cl2, यहाँ पे है MnCl2. क्लियर. अब देखो यहाँ पर MnO2 प्लस HCl. यस, यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4. तो यहाँ 4 कर दो. अब देखो 4 किया तो बैलेंस हो गया, देखो सब बैलेंस, Mn1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन भी कितने, देखो 4, 2 and 2. यस, दिस इज अ मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. क्लियर. अब देखो थर्ड क्वेश्चन, Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO2 प्लस H2. देखो इसको तुम लोग ने आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड से भी किया था. इट इज ऑल्सो सॉल्व बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो देखो यहाँ पे Cu का क्या होगा, 0, हाइड्रोजन प्लस 1, नाइट्रोजन का होगा प्लस 5, सॉल्व करके देख लेना, ऑक्सीजन का -2, दिस कॉपर प्लस 2, दिस नाइट्रोजन प्लस 5, दिस ऑक्सीजन -2, दिस नाइट्रोजन प्लस 4, ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन प्लस 1, ऑक्सीजन -2. अब देखो रिलेशन किस किस का हो रहा है, दिस कॉपर टू दिस कॉपर एंड दिस नाइट्रोजन टू, इसके साथ नहीं होगा क्योंकि इसका भी +5 है, दिस नाइट्रोजन टू दिस नाइट्रोजन. तो इसको फिर से लिखो, Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO2 प्लस H2O. तो देखो इसका 0, इसका +2, तो 0 2 +2 क्या हो रहा है, 0 2 +2. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, यानी ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट. यस, यहाँ पे कितना है, +5 2 + 4, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा. यस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस,
इट मीन्स रिडक्शन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी इंक्रीमेंट, यस। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 0 to +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 5 से 4 यानी 1 इलेक्ट्रॉन का, यस। तो इस वाले पार्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से। तो देखो Cu प्लस 2HNO3, अभी पहले करना है इसको ऐसे बैलेंस, देन CuNO3 होल ट्वाइस, और इस पार्ट को भी किससे करना है, 2 से, 2NO2 प्लस H2O। देखो यहाँ तक तो बैलेंस है, अब इसको हमें करना है बैलेंस, वाटर के कारण इसका बैलेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर एक, फिर नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन इज 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, 2 और 2 4 हो गया, यानी यहाँ भी 2 नाइट्रोजन और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4HNO3। मैं इसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे लिख रहा हूँ 4HNO3, क्लियर। अब देखो ये भी 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो देयर इज 2, तो यहाँ पे 2 कर दो, हाइड्रोजन हो गया 4। अब ऑक्सीजन को देखो, 4 3 12, तो यहाँ देखो 3 2 6, 6 4 10 एंड 2 12, यानी इसका इक्वेशन बनेगा Cu प्लस 4HNO3 gives CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, क्लियर। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O. This is the first homework, and now the second question is Zn plus HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus NH4NO3 प्लस H2O। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, क्लियर, ओके। एंड नाउ अब देखो मुझे दूसरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है आयंस वाला, तो नाउ दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन, Cr2O7 2 minus plus SO2 plus H plus gives 2Cr3 plus HSO4 minus plus H2O, clear, this is a question। अब देखो ये आयंस है, तो आयंस का भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो दिस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2x 714 इज इक्वल टू -2, तो 14 - 2 यानी +12, तो इस क्रोमियम का आ गया +6, इस ऑक्सीजन का -2, इस सल्फर का +4, ऑक्सीजन का -2, पहले सबका करना है, इस हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी +1 है, इस क्रोमियम का देखो 2 3 6 है, इस क्रोमियम का कितना है 2 3 6 +6 है, क्योंकि कोफिशिएंट भी काउंट होता है। इस हाइड्रोजन का +1, सल्फर का करके देखो 2 4 8, 8 में से 1 गया 7, 7 उधर गया +7 यानी +6, इस ऑक्सीजन का -2, यू नो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। अब देखो रिलेशन किस किस के पीछे बनेगा, एक तो इस क्रोमियम के साथ इस क्रोमियम का बन रहा है, देखो इस क्रोमियम के साथ इस क्रोमियम का अभी बन रहा है, क्योंकि देखो अभी हमें जनरली यहाँ पर क्या देखना है, एक्चुअली यहाँ पर ये क्रोमियम का Cr नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है।
इस क्रोमियम के साथ इस क्रोमियम का रिलेशन होगा और इस सल्फर के साथ इस सल्फर का रिलेशन होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। तो देखो जनरली हम इसको अगर अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, देखो इसको हम अलग अलग भी शो कर सकते हैं, ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। Cr3+, तो देखो इसका है +6 और इसका है +3, तो +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, इट मीन्स रिडक्शन। यस, रिडक्शन इज देयर। अब कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, +6 से +3 में, +6 से +3 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। यस, यानी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो दूसरे वाले में, SO2 से HSO4 में आ जाओ, क्लियर। तो देखो इस सल्फर का है +4 और इस सल्फर का है +6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, इट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यस, अब इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे करते थे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट वाले को, इस पार्ट को कर दो किससे, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 से करो, और ये हो जाएगा, देखो इसका 3 है, इसका 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करना है ना। तो ये हो जाएगा 2Cr2O7 2 और इस सल्फर का क्या रिलेशन है, 2, यानी इसको 3 से करना पड़ेगा, 3SO2। अभी H+ को ऐसे ही रहने दो, गिव्स, अब इसको किससे करना था, 2 से, तो 2Cr3+, और इसको किससे करना था, 3 से, 3HSO4- प्लस H2O। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का ही बैलेंस होता है। अब देखो यहाँ पे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, मेटल को, तो क्रोमियम इज द मेटल, तो यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 4, तो पहले तो इसको 4 कर दो, ये हो जाएगा 4Cr। अभी मैं इसी की तरफ लिख रहा हूँ, इसके अंदर ये हो जाएगा 4Cr, क्लियर। अब देखो सल्फर को करो, सल्फर यहाँ पे कितना है, देखो 3 सल्फर है, इधर भी 3 सल्फर है, क्लियर। अब देखो उसके बाद करो आप ऑक्सीजन को, 2 7 14, यहाँ पे कितना है, 3 4 12 और यहाँ पे है 1, तो ये हो जाएगा 2। देखो 2 7 14, तो ये हो गया 3 4 12 और 2 14। अब हाइड्रोजन देख लो, लास्ट में हाइड्रोजन बचे, यहाँ पे कितने हैं, 3 और 4 7, 3 हाइड्रोजन एंड 4 7H+, क्लियर। अब देख ले, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखो 7+ एंड 4-, यहाँ पे कितना आ रहा है, +3 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 2 4 2 3 6 6 -3 +3 का डिफरेंस, यहाँ भी वही है, सेम कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा 2Cr2O7 2- प्लस 3SO2 प्लस 7H प्लस 4Cr3+, ठीक है, क्लियर। Understood? Clear. So now this is a topic of oxidation number method. एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ सॉल्व करने के लिए. Now this is a third homework. Cl2 plus iO3 minus gives plus OH minus gives iO4 minus plus Cl minus plus H2O. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है. इसको आप आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड से भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन दिस इज योर होमवर्क. दिस इज अ बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है. ओके, थैंक यू.